Good evening, friends. This is Mr. Mahesh Anarthe. I welcome you all to my YouTube channel. NPCIL तारापुर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है। उन्होंने नर्स ए का वैकेंसी निकाला था जिसके लिए 24 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 2 शिफ्ट में। तो शिफ्ट 1 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। So let's move to the questions. So first is which hormone is secreted by pineal gland? So options are melatonin, oxytocin, thyroxine and epinephrine. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, that is melatonin is secreted by pineal gland. Then question number 2, that is Naegeli's rule is used to calculate. Options are TBSA of burn percentage, that is total body surface area. Then B is gestational age, C EDD and D is fluid requirement. So option C is correct, that is EDD. Next question, what should be the temperature of water for tepid sponging? So options are 70 to 80 degree Fahrenheit, 100 to 110 degree Fahrenheit, 70 to 90 degree Fahrenheit and 85 to 100 degree Fahrenheit. So option D is correct, that is 85 to 100 degree Fahrenheit should be the temperature of water for tepid sponging. Next question is oxytocin hormone is produced by. Options are A is pituitary, B ovary, then placenta and hypothalamus. So option D is correct. Oxytocin is produced by hypothalamus and it is regulated and secreted by the pituitary gland. Next question, which of the following is a sleep regulating hormone? So options are epinephrine, tyrosine, melatonin and serotonin. So option C is correct, that is melatonin is a sleep regulating hormone. Next question, for a Rh negative mother and Rh positive baby after childbirth, anti-D immunoglobulin should be given within. So options are 24 hours, 72 hours, 48 hours and 1 week. So option B is correct, that is within 72 hours of childbirth anti-D immunoglobulin दिया जाना चाहिए. Next question, a client admitted to emergency department is a victim of sexual assault, appears to be very calm and silent, showing no emotion. The client using a defense mechanism is known as. So options are projection, denial, rationalization and intellectualization. So correct option is option number D, that is intellectualization. Next question, a process where nurse gathers, sorts and analyzes patient's history and health information is called as. So options are nursing assessment, nursing diagnosis, planning and implementation. So इसका correct option होगा option A, that is nursing assessment. Question number 9, a patient admitted with chronic respiratory failure, the oxygen should be administered at a rate of. Options are 1 liter per minute by nasal cannula, then 2 liter per minute by nasal cannula, 5 liter per minute by nasal cannula and lastly 10 liter per minute by nasal cannula. So correct answer is option number B, that is 2 liter per minute by nasal cannula. Next question is which of the following is a correct nursing action regarding the suctioning procedure? So options उन्होंने दिया है oxygenate the patient before the suctioning, perform suctioning for more than 15 seconds, oxygenate patient after suctioning and oxygenate patient before and after suctioning. जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे रहेगा कि हमें पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिओलिन कंटेंस. सो डिओलिन इज अ रेस्पिरेटर सॉल्यूशन जो जिससे हम नेबुलाइजेशन देते हैं उसका कंटेंट इन्होंने पूछा है. तो उसका ऑप्शन है सैल्ब्यूटामॉल सल्फेट एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, डेरिफाइलिन एंड थियोफाइलिन. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैल्ब्यूटामॉल सल्फेट एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन प्रिवेंट्स ट्यूबरक्यूलोसिस. तो इसका ऑप्शन है BCG, DPT, TT एंड OPV. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज BCG, Bacilli calmette-guerin इज अ वैक्सीन विच प्रिवेंट्स ट्यूबरक्यूलोसिस. Next question, which of the following is an anti-tubercular drug? So options are bleomycin, erythromycin, pyrazinamide and penicillin. So option number C is correct, that is pyrazinamide is a anti-tubercular drug. Next question, which of the following cannula is used for neonates? So options उन्होंने दिया है 18, 20, 22 and 24. So इसमें से जो 24 नंबर का कैनुला है वो हम neonates में यूज करते हैं. So option number D is correct. Next question, most common site for
ectopic pregnancy is? Options are isthmus, fimbria, then ampulla and interstitia. So as we know कि ectopic pregnancy का जो most common site रहेगा it is ampulla. So option number C is correct. Next question, ये जेनेटिक्स से पूछा गया है. सो कैरियोटाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम. सो इसका ऑप्शन है 47XY + 21, बी 47XY + 18, सी 48XY एंड डी 47XXY. सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा इज ऑप्शन ए, दैट इज 47XY + 21, क्योंकि इसे हम 21st ट्राइसोमी कह सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिस्टैक्सिस मीन्स. सो एपिस्टैक्सिस टर्म का मीनिंग यहाँ पे पूछा है, तो उसका ऑप्शन इन्होंने दिया है ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड ब्लड इन यूरिन. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरसेस. तो वायरसेस के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें यहाँ पे चूज करना है. सो उसका ऑप्शन है दे कैन ओनली हैव RNA, दे कैन ओनली हैव DNA, they have both RNA and DNA, they can either have RNA और DNA. सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. वायरसेस में either DNA रह सकता है और RNA रह सकता है. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस वैसोकंस्ट्रिक्शन. सो ऑप्शन उन्होंने दिया है डोपामिन, इपिनेफ्रिन, एट्रोपिन एंड सीरोटोनिन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इपिनेफ्रिन कॉजेस वैसोकंस्ट्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, physician orders to administer 10 units of insulin. The nursing officer knows that 10 units insulin is equal to. So जो इंसुलिन सीरिंज रहेगा उसमें 40 यूनिट्स रहता है टोटल, जो 1 ml का रहता है, तो 10 यूनिट मतलब 0.25 ml. सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ प्रीक्लैम्सिया एक्सेप्ट. तो यहाँ पे एक्सेप्ट करके पूछा है उन्होंने, ऑप्शंस दिए है एलिवेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्रोटीन्यूरिया, इडिमा एंड कन्वर्जन. सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि प्री इक्लैम्सिया में कन्वर्जन सिम्टम नहीं रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज. ऑप्शंस दिया है उन्होंने यूरेटर, यूरेथ्रा, ग्लोमेरुलस एंड रीनल आर्टरी. सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूरेटर, इज अ कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर. Next question, jaundice causes yellowish discoloration of following except. So options are eyes, skin, palm and teeth. So jaundice will cause yellowish discoloration of eyes, skin and palm, but teeth का yellowish discoloration jaundice की वजह से नहीं होगा. So correct option is option number D, that is teeth. Question number 24, shockable cardiac rhythms are कार्डियक असिस्टोल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. तो कार्डियक असिस्टोल शॉकेबल नहीं है. इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन मतलब ये पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहता है, तो ये भी शॉकेबल नहीं है. बट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शॉकेबल कार्डियक रिदम है. सो ऑप्शन डी, दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिसअपियर लास्ट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. सो ऑप्शन इन्होंने दिया है प्यूपिल रिफ्लेक्स, कॉन्शियसनेस, पेन सेंसेशन एंड हियरिंग. तो इसमें से जो लास्ट में डिसअपियर होगा इज योर प्यूपिल रिफ्लेक्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. Next question, a patient admitted in psychiatric unit having suicidal tendency, nurse should be alert for which of the following symptoms. तो इसका ऑप्शन दिया है उन्होंने एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिल्यूजन्स, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस. तो पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसी मतलब पेशेंट डिप्रेशन का पेशेंट है, तो इसमें जो सिम्टम्स देखा जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV. सो HIV के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा रहेगा. उसका ऑप्शंस दिया है इलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, रैपिड टेस्ट और नन ऑफ द अबव. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ causative एजेंट फॉर malignant मलेरिया. सो ऑप्शंस आर प्लाज्मोडियम फैल्सिपारुम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओहाले. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपारुम इज अ causative एजेंट फॉर मैलिग्नेंट मलेरिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट
causes no radiation exposure to the patient. तो इसका ऑप्शन है CT स्कैन, MRI, लीनियर एक्सीलरेटर एंड पेट स्कैन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, MRI, क्योंकि MRI में कोई रेडिएशन यूज नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट न्यूरोसर्जरी पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन. तो उसका ऑप्शन है ट्रेंडलेनबर्ग, दैट इज हेड लो पोजीशन. सेकेंड इज सुपाइन. नेक्स्ट इज हेड एलिवेटेड इन 30 डिग्री. देन सेमी फाउलर पोजीशन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेड शुड बी एलिवेटेड 30 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन ग्लार्जिन इज अ डैश डैश टाइप ऑफ इंसुलिन. तो इसका ऑप्शन है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड रैपिड एक्टिंग. तो हम जानते हैं कि इंसुलिन ग्लार्जिन क्या है, इट इज लॉन्ग एक्टिंग टाइप ऑफ इंसुलिन है. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन एनाटॉमी से है, दैट इज नंबर ऑफ वर्टेब्रा प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी में कितने वर्टेब्रा प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका ऑप्शन है 28, 33, 34 एंड नन ऑफ द अबव. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 33. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस हैव द हाईएस्ट आयरन कंटेंट. सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट किस में हो रहेगा. तो इसका ऑप्शन है मूंग दाल, बंगाल दाल, ब्लैक दाल एंड सोयाबीन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्लैक दाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश वाटर फिश लैक्स द फॉलोइंग कंटेंट. तो नीचे से ऐसा कौन सा कंटेंट है जो फ्रेश वाटर फिश में नहीं रहेगा, दैट इज देन आयोडीन, विटामिन ए एंड फॉस्फरस. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. फ्रेश वाटर फिश में आयोडीन लैक रहेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी इंजेक्टेड इन ग्लूटियल मसल इज. सो इसका ऑप्शन है 2 ml, 5 ml, 7 ml एंड 10 ml. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 ml इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी इंजेक्टेड इन ग्लूटियल मसल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया शोज फॉलोइंग सिम्टम्स एक्सेप्ट. तो इसका ऑप्शन है पेन एक्टिवेटेड बाय टचिंग द फेस, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन ऑन वन साइड ऑफ द फेस, देन शार्प पेन इन वन साइड ऑफ द फेस एंड डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग. सो एक्सेप्ट करके पूछा है इन्होंने, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय. तो इसका ऑप्शन है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बॉडी फ्लूइड, शेयरिंग फूड एंड लास्टली वाटर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉडी फ्लूइड. Question number 38, which of the following symptoms should be present in a patient with serum potassium level of 2.9 मिलीमोल पर लीटर. तो जो पेशेंट है उसमें सीरम पोटेशियम का लेवल अगर कम हुआ है नॉर्मल से, तो उसमें कौन सा सिम्टम प्रेजेंट रहेगा. सो ऑप्शंस आर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डायरिया, हार्ट पाल्पिटेशन एंड डीप टेंडन हाइपर रिफ्लेक्सिया. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. Which of the following electrolyte is responsible for initiation of atrial depolarization. तो इसका ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोटेशियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse posted in psychiatric unit, the primary goal of the nursing care being provided is. so प्राइमरी गोल क्या होगा नर्सिंग केयर का साइकेट्रिक यूनिट में. ऑप्शंस दिया गया है इम्प्रूव communication with the client, reduce environmental stress, provide emotional support and assist client for adaptation to surrounding environment, give medication and lastly provide psychotherapy. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज reduce environmental stress, provide emotional support and assist client for adaptation to the surrounding environment. नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पाइस केयर मीन्स. हॉस्पाइस केयर जो टर्म है उसका मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है. तो ऑप्शन है अ केयर फोकसेस ऑन द केयर, कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन विथ सीरियस इलनेस हु इज अप्रोचिंग द एंड ऑफ लाइफ. नेक्स्ट ऑप्शन फैमिली सेंटर्ड केयर, फैमिली एजुकेशन एंड यूथनासिया. सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. सो ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में इसमें से क्या क्या यूज होगा. सो ऑप्शंस आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ब्रोंकोडाइलेटर, एंटीहिस्टामाइन्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव विल बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक इज. उसका ऑप्शंस दिया गया है ब्रेन हैमरेज, बी हेड इंजुरी, सी इंटरप्शन
of blood supply to the brain. Then D is decreased blood supply to the heart muscles. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ ब्लियोमाइसिन. ब्लियोमाइसिन ड्रग का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या रहेगा? सो उसका ऑप्शन है कार्डियोमायोपैथी, लिवर टॉक्सिसिटी, रीनल टॉक्सिसिटी एंड न्यूरोपैथीज. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्डियोमायोपैथी. Next question, an excessive deep state of unresponsiveness. Options are delirium, dementia, stupor and unconsciousness. So answer, option number C is correct answer, that is stupor is a excessive deep state of unresponsiveness. Next question, following are the complication of measles except. सो एंसेफेलाइटिस, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया एंड अर्थराइटिस. इन्होंने एक्सेप्ट करके पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अर्थराइटिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स. क्वेश्चन नंबर 47, रैप्डोमायोसार्कोमा इन चिल्ड्रन इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉफ्ट टिश्यू, ये सॉफ्ट टिश्यू में ओरिजिनेट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एसोसिएटेड विथ डिलेड फीटल लंग मैच्योरिटी. तो जो डिलेड फीटल लंग मैच्योरिटी होगी वो किसके कारण होगा? इट्स बिकॉज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीटर केली सिंड्रोम. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अ फीचर ऑफ पीटर केली सिंड्रोम. देन साइनाइड पॉइजनिंग किट कंटेंट्स. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोफॉस्फेट रहेगा साइनाइड पॉइजनिंग किट में. सो ये 50 क्वेश्चंस थे स्टेज 2 के, जो टेक्निकल एरिया से हमने कवर किए हैं. आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा. इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट यूजफुल तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.